Hello friends, welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for Wednesday, that is 13th of September 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So we discussed अगर निफ्टी गैप अप खुल जाए, right? कोई भी बड़ा गैप अप अगर 20,050 के ऊपर हो जाए, we are clearly avoiding, right? This is what we discussed in Nifty. In Bank Nifty we though discuss कि अगर गैप अप भी खुल जाए, what we will do, we will wait for this, ये जो consolidation zone है इसके पास we will wait and see कि इसके पास अगर हमें हैमर मिल जाए, right? इसके पास अगर हैमर मिल जाए, कंसिडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल, वी आर इंटरेस्टेड फॉर वन पंप का अपॉर्चुनिटी, राइट? फॉर 100 प्लस पंप का अपॉर्चुनिटी विच वी गॉट इन बैंक निफ्टी वेरी क्लियरली, राइट? विच वी गॉट इन बैंक निफ्टी वेरी क्लियरली एंड वी ऑलवेज डिस्कस, ऊपर जाते हो अगर स्विंग लो टूट जाए, वी विल ऑलवेज इमीडिएटली एग्जिट, राइट? सो दिस अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी was very clear. In Nifty also, if you remember, even though we have avoided this scenario, you may notice that we discussed कि अगर 19900 के पास निफ्टी आ जाए, राइट? 19900 इस जोन के पास मिल जाए, इसके पास आके अगर 15 मिनट्स पे कोई ऐसा ही हैमर बनाए, राइट? कोई हैमर बनाए, कोई पॉजिटिव ग्रीन बुलिश कैंडल दिख जाए, तो वहां से हमें 50 प्लस पॉइंट्स का पंप मिल सकता है अगर वो वापस 9950 को ब्रेक करे. इफ यू सी यस्टरडेज वीडियो अगेन, यू मे नोटिस वी हैव सेड दैट कि इसके पास आ जाए. ऑफ कोर्स दिस सिनेरियो वाज फॉर फ्लैट एंड गैप डाउन, राइट? दिस वाज नॉट फॉर गैप अप, बट इवन विद गैप अप ये प्रीवियस जो स्विंग है उसी के पास से, राइट? वी ऑलवेज डिस्कस उसके पास कैसा प्राइस एक्शन मिलना चाहिए, ऐसा या तो हैमर मिल जाए या तो इसके पास ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिल जाए जिसको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंफर्मेशन दे. एंड यू मे नोटिस clearly from this support, right? Even with such a good selling, even with this selling, we saw that कि ये support intact रहा and इसके पास से we saw this pump happening, right? We saw this pump happening. This happened in Nifty. Now the reason to say that is, again if you see it from 1st of September, again if you see it from 1st of September, it has always went for higher highs, right? 1st of September से ट्रेंड जब बदलेगा then we will accept, right? कि ट्रेंड बदल गया है, but 1st of September से क्या है, it is going on for higher highs and higher lows, right? It is going on for higher highs and higher lows. Another thing that I want to tell you is that कि 1st of September से you may notice कि intraday में भी, इंट्राडे में भी 1st ऑफ सितंबर से इट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग हायर हाइज, राइट? 1st ऑफ सितंबर से इंट्राडे में भी कोई भी पुराना स्विंग लो, कोई भी पुराना स्विंग लो के नीचे इंट्राडे में भी ट्रेड नहीं कर रहा था. इनफैक्ट टुडे इज द फर्स्ट डे, टुडे इज द फर्स्ट डे जहां पे इंट्राडे में आज it has traded below the previous swing high, right? ये आज first time this has happened. That is the reason we may see on days frame also we got the red candle, right? In Nifty also and in Bank Nifty also. If you see the days frame candle, this is almost after 1st September. कितने green candles होने के बाद 3, 6, 7. After 7 green candles, this is the very first red candle. And if you remember in one of our previous videos, I have always said that if FIs and DIs both buy in cash, right? FIs, DIs अगर दोनों cash में buy करे, there is a probability कि next day selling हो सकती है, right? Now this is probability. ऐसा नहीं कि हमेशा ही selling होगी, but there is a ratio, right? For 7 out of 10 times, 8 out of 10 times you may see कि next day selling ही मिलती है. I have been tracking this from May month, right? May month से जहाँ पे कुछ दिन ऐसे थे जहाँ पे FIDs दोनों ने buy करके भी next day positive ही था. But this probability do works, right? Of course we will also include chart analysis and everything, right? ऐसा नहीं कि दोनों ने buy कर दिया है तो next day selling ही होनी है. So this is just probability. And also in Bank Nifty also, today's day's candle is also clear cut red after 3 days consistent green candles, right? So considering all these factors and coming back on 15 minute and realizing कि intraday में this is the very first time since 1st of September we are having this lower swing, right? This is lower swing in intraday. Now this may be due to profit booking, retracement या correction direction intraday में जो भी you may call it, right? But we saw this lower swing. So considering all these factors, what about Wednesday, right? What about tomorrow? So first of all, आज का ये जो लो है, this low, right? This low, आज का ये जो low है, this is coming closer to where? Let me just check it. This low is coming closer to 19914, right? We will consider 19910. ये जो लो है, it is coming closer to 19910. What is this swing? जो swing को वापस intraday में Nifty was not able to cross. This swing comes closer to 20,040. Where is this candle का high? This high is at 20,063 and this high is at 20,040. We will consider again 20,050 here, right? We will consider 20,050 को इसने cross करना चाहिए. This is at 20,050. Let me just write it down. This swing comes closer to 20,050. Okay, and the high was at 2110. Let me again just recheck it. The high was at 20,110. Yes, the high is at 20,110. So this is the high, 20,110. This is the mid swing.
and this was the low 19910, right? So if we open flat, right, abhi what is this line? This line since 6th of September we are saying ki this is always taking support at this line, right? Since 6th of September इस line ये जो blue line draw की है इसी के पास से support ले रहा है, right? So first thing is अगर flat खुले या gap up खुले, right? Flat खुले या gap up खुले अगर सिर्फ 20,050 के ऊपर 20,050 के ऊपर अगर आर्ली कैंडल क्लोज कर सके, ना 30 मिनट्स ना 15 मिनट्स ना 5 मिनट्स, 1 आवर कैंडल, राइट, एक आवर की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाए, कैसी, इफ दिस टाइप ऑफ ग्रीन कैंडल, ऐसी ग्रीन, ये हैमर, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, यही प्राइस एक्शन, ऐसा ही प्राइस एक्शन, राइट, नॉट दिस इन्वर्टेड हैमर, ऐसी इन्वर्टेड हैमर नहीं जिसके बाद वापस साइडवेज गया, राइट। दी प्राइस एक्शन इज इंपॉर्टेंट कि प्राइस एक्शन हमें कैसा मिल रहा है, राइट। तो प्राइस एक्शन कैसा मिले कि द ग्रीन्स दैट वी हैव मार्क, ऐसी ग्रीन इसके साथ अगर 20,050 के ऊपर क्लोज हो जाए, इसके साथ अगर 20,050 के ऊपर क्लोज हो जाए, आई विल कंसीडर ओनली 20,000, राइट। ये पॉइंट तक, ये पॉइंट पे आई विल कंसीडर एसएल व्हिच कम्स क्लोजर टू 20,000 फॉर द टारगेट, ये 20,110 तक के टारगेट के लिए आई विल गो फॉर कॉल, राइट, कंसीडरिंग जस्ट 50 पॉइंट्स का एसएल। कब? अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुले और 20,050 के ऊपर आर्ली कैंडल क्लोज हो सके, अगर आर्ली कैंडल ही 20,080 या 100 के पास क्लोज हो जाए, राइट, अगर आर्ली कैंडल 20,080 या 100 के पास आए, इसके पास इतना ऊपर आ जाए, इसके पास से वापस आई विल वेट फॉर डिप, राइट, आई विल वेट फॉर डिप एंड सी की वापस 20,050 के पास आ रहा है क्या, जैसे यहां से वापस पुराने सपोर्ट के पास आ रहा है क्या, सपोर्ट के पास से वापस पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला जो 20,050 के ऊपर सस्टेन करे, ओनली देन आई विल गो फॉर कॉल, और एल्स आई डोंट वांट कॉल, राइट। आर्ली इसके ऊपर सस्टेन भी हो जाए और 20,080 या 100 तक आ जाए, उसके बाद उसके ऊपर और 100 पॉइंट्स पंप ले, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आर्ली इसके पास आए, आर्ली इस पंप के पास आए, राइट, इस पंप के पास आए और इसके ऊपर 20,050 60 के ऊपर अगर आर्ली क्लोजिंग दे सके, 80 या 100 तक भी जाए तो वापस 50 के पास आए, 40 30 के पास आए, वहां से वापस 50 ब्रेक करे, only then I am interested for taking the call. Why this kind of price action? Just look at September series, right? हमेशा resistance के पास से एक dip and then it went up, again a dip, again it went up, again dip, gap up खुला, again then it form a base बना के ऊपर, आज भी ऊपर गया, again came closer to base, again went up, again came closer to support, again went up, right? So it is following the dip का price action, right? Following the dip का price action. That is the reason फ्लैट खुले या गैप अप खुले, राइट, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, 20,050 के ऊपर आर्ली टीके 20,000 का आई विल कीप दी एसएल, और यहां से दिस विल बी दी एसएल एंड ओनली फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल टिल दिस पंप व्हिच इज एट 20,110, राइट। अगर ये ब्रेक हो जाए आई एम इमीडिएटली एग्जिटिंग, राइट, अगर ये ब्रेक हो जाए आई एम इमीडिएटली एग्जिटिंग, अगर वापस आर्ली इसके ऊपर रह पाए, ओनली देन आई विल डू इट, दिस आई विल डू ट्वाइस, लेट इट बी फ्लैट और लेट इट ओपन गैप अप, राइट, फ्लैट या गैप अप के लिए, इससे भी बड़ा गैप अप हो जाए, इसके पास आ जाए वापस, आई विल वेट टू सी कि ये सपोर्ट के पास आके वापस ऐसे ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन लेता है क्या, जस्ट दी वे वी आर सीइंग इट हियर, राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सितंबर सीरीज, ऐसा हो, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल, और एल्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल, दैट इज फ्लैट या गैप अप का सिनेरियो। सिमिलरली फ्लैट खुले यानी 20-30 पॉइंट्स ऐसे ऊपर नीचे खुले, पर अभी ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन हम लोग 6th ऑफ सितंबर से देख रहे हैं, राइट, ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, तो फ्लैट खुल के यहां से अगर इमीडिएटली ये नीचे तोड़े तो यहां से वापस पंप हो सकता है, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फ्लैट भी खुले तो, या फ्लैट खुले तो जब तक मुझे इस सपोर्ट के नीचे निफ्टी नहीं दिखे, राइट, नाउ दिस सपोर्ट इज वे टू फार, आई डू अंडरस्टैंड दिस मे बी, राइट, let me just see it on crosshair, right, let me just see it on crosshair, this support is at 19,885, right, this support is at 19,885, तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करे, राइट, 19,885 का सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं करे, 19,885 फ्रॉम 19,985, दिस इज एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स अवे, राइट, 100 पॉइंट्स अवे ये सपोर्ट है, सो फ्लैट में ऑलरेडी इट इज ईटिंग 100 पॉइंट्स, राइट, इसीलिए फ्लैट में आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, अगर फ्लैट खुल के इसके पास भी आए, हाँ, इसके पास आए और इसके पास आके वापस अगर ऐसी हैमर बनाए, इसके पास आके अगर वापस ऐसा प्राइस एक्शन दे, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, ऐसा पॉजिटिव कोई बुलिश प्राइस एक्शन दे 19,885 के पास, स्टिल आई विल वेट एंड सी की वापस यही जो जोन है इसके ऊपर वापस पंप करता है क्या, यानी 19,950 तक तो ऊपर जाए, 19,885 के पास आए, इसके पास पॉजिटिव प्राइस एक्शन देके अगर 19,950 के तक भी पंप करे, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल, तो फिर फ्लैट खुल के व्हेन आई एम इंटरेस्टेड टू फॉर पुट हियर, क्योंकि ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है ये तोड़ रहा है, राइट, 19,885 के पास अगर फ्लैट खुल के
19885 के पास अगर फ्लैट खुल के on 30 minutes if it is able to make red. Why on 30 minutes? Because it is not breaking intraday low. Remember, it is not breaking intraday low. So पिछले 2 दिनों का इंट्राडे लो अगर 30 मिनट्स पे सस्टेन कर पाए जो पूरे सितंबर सीरीज से नहीं हुआ है, then I'm interested to take the put considering high of that candle as an SL, right? Considering high of that candle as an SL from here, यहां से लेके 19800 तक के टारगेट के लिए, राइट? 19800 इसके पास भी आके अगर लोअर हाइज रखे ओनली देन आई विल स्टे इन दी पुट। कब? अगर फ्लैट खुल के इसके पास आए, राइट? फ्लैट खुल के अगर 19885 इस जोन तक आ पाए, 19885 के जोन तक आ पाए, राइट? 30 मिनट्स इसके नीचे सर्वाइव कर पाए, नहीं तो क्या, नहीं तो कोई भी 15 मिनट्स की यहाँ पे अगर ग्रीन हैमर भी बना दे तो 19950 के ऊपर जाए, राइट? 19950 के ऊपर जाए देन वी विल कंसीडर 19900 का एसएल अगेन फॉर पंपिंग। दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो। अगर फ्लैट खुल के नीचे आए, फ्लैट या गैप अप पे ऊपर जाए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। व्हाट अबाउट गैप डाउन? अगर गैप डाउन हो जाए, राइट? गैप डाउन हो जाए, अगेन दी सेम सिनेरियो, ओनली इफ 19885 के नीचे गैप डाउन हो जाए, 19885 के नीचे इफ इट सस्टेन्स 30 मिनट्स, 30 मिनट्स फ्लैट या गैप डाउन पे भी कैसी रेड होनी चाहिए? दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसी रेड, ऐसी हैमर नहीं, इतनी अच्छी खासी बनी है, फिर भी इसके बाद द लो इज नॉट ब्रोकन, राइट? इसका लो नहीं ब्रेक हुआ एंड अगेन प्राइस एक्शन वेंट अप, राइट? इसलिए ऐसी हैमर नहीं। तो अगर गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल के नीचे आए तो रेड कैसी बने? दिस 3 टाइप्स ऑफ रेड, ऐसी रेड बन जाए, ऐसी रेड बन जाए, राइट? या फिर ऐसी भी बन जाए तो इसका भी लो वापस से ब्रेक करे, राइट? इसका भी लो ब्रेक कर पाए अगेन ऑन एटलीस्ट 15 मिनट्स, ऐसी बनने के बाद, राइट? नहीं तो 30 मिनट्स पे ऑलरेडी द रेड्स वी हैव मार्क्ड, ऐसी रेड के साथ दिस टाइप ऑफ रेड ओनली इफ इट इज एबल टू ब्रेक 19885, राइट? ओनली इफ इट इज एबल टू ब्रेक 19885 कंसिडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल। अगर एसएल सिर्फ 20 पॉइंट का आता है देन आई विल इंक्रीज दैट एसएल एटलीस्ट टू 50 पॉइंट्स, राइट? 50 पॉइंट्स का एसएल आई विल मेक इट। व्हाई? बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग यहां से टारगेट फॉर 19800। इसके पास आके भी अगर लोअर हाइज रखे और 19850 के पास पंप होने की जगह, यहां तक पंप होने की जगह गए, अगेन इफ इट इज कंटिन्यूइंग फॉर लोअर लॉस, आई विल स्टिल स्टे इन द ट्रेड, राइट? आई विल स्टिल स्टे इन द ट्रेड। दैट इज कब? फ्लैट या गैप डाउन 30 मिनट्स की यहाँ पे रेड हो जाए, राइट? अगर कोई, आई विल वेट एंड सी की 30 मिनट्स की कैंडल बन रही कैसी है। अगर यहाँ पे आके तोड़ जाए और ऊपर जाके वापस रेड में ऐसी हैमर क्लोज हो जाए, राइट? ऐसी हैमर क्लोज हो जाए या इसके पास आके इतना नीचे तोड़े या ग्रीन हैमर बन जाए, देन व्हाट इज द पॉइंट? 30 मिनट्स आई विल वेट एंड सी की कैंडल कैसी बन रही। बहुत ज्यादा नीचे आ जाए, अगेन आई विल वेट फॉर दी पंप के पास आके वापस से अगर सपोर्ट ब्रेक करे ओनली देन आई विल री एंटर। इफ इट इज नॉट सपोर्टिंग माय सेटअप आई विल नॉट एंटर द ट्रेड। दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो फॉर गैप डाउन, राइट? So we have discussed both the scenarios for gap down as well as flat as well as gap up for Nifty, right? What about Bank Nifty? In Bank Nifty also, just a minute. Now अभी ये जो swing है, right? This is the swing in Bank Nifty इसी के ऊपर। Now Bank Nifty is clearly very strong. That is the reason Bank Nifty अगर इसके ऊपर, ये swing के ऊपर अगर 30 मिनट्स भी रह पाए, right? 30 मिनट्स ग्रीन कैंडल कर दे, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, where is this swing coming? This swing is coming closer to 45,650, right? It is 648. I will consider 45,650. थोड़ा सा ऊपर, I am considering थोड़ा यहाँ से 10-20 पॉइंट्स का बफर, so I am considering 45,650. ओनली इफ बैंक निफ्टी विथ फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग अगर इसके ऊपर 30 मिनट्स भी, अगर इसके ऊपर 30 मिनट्स की ग्रीन कैंडल दे दे, राइट? कैसे? ऐसी डोजी दे क्या? नहीं, आई विल नॉट कंसीडर दिस डोजी। ऐसा प्राइस एक्शन मिले, दिस टाइप ऑफ हैमर, ऐसा दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, राइट? व्हिच इज शोइंग इन प्राइस एक्शन दैट इट इज गोइंग अपवर्ड्स, राइट? ऐसा प्राइस एक्शन 30 मिनट्स पे अगर इफ इट इज एबल टू सस्टेन अबव 45,650, आई विल कंसीडर एसएल एट 45,600, राइट? आई विल कंसीडर एसएल एट 45,600। अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल टिल दिस स्विंग हाई, right? Till this swing high which comes closer to 45,800, right? Considering SL at 45,600 only, I will execute this trade twice even if SL is it, right? दो से ज्यादा I will not do this. This is for flat या gap up. As tomorrow is Bank Nifty का expiry, I am interested to take next week का expiry trade, right? Not for tomorrow. सो दैट इज फ्लैट या गैप अप इसके ऊपर सर्वाइव करे इस बिग जोन में जहां पे बैंक निफ्टी वाज नॉट एबल टू सर्वाइव आफ्टर 12 pm के बाद ये जोन वापस ये रेसिस्टेंस तोड़ा ही नहीं, इसीलिए इस जोन में आई डू नॉट वांट एनी कॉल, राइट? ये जोन में आई डू नॉट वांट एनी कॉल। उसी तरीके से फॉर एनी पुट सिनेरियो, राइट? एनी पुट सिनेरियो, एक तो यहां से इसके ये 45,490 से टुडेज लो 45,490 के पास से आज का ये जो लो आ रहा है, द लो इज वेयर the low is at 45,320 and again look at this, ये जो consolidation support है, this will also act as support. So that is the reason फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, राइट? फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले इस जोन के पास है
45,300, 45,290, 45,300 से लेके 290, 350 इस जोन में आए, इस जोन में आके भी वापस अगर 45,400 ब्रेक कर सके, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, 45,290, 350 इस जोन में आके अगर वापस से 45,400 ब्रेक कर सके, वापस कैसे, वापस इसके पास अगर कोई ग्रीन बुलिश हैमर बना दे, उस तरीके से ब्रेक कर सके विद दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, ऐसी ही प्राइस एक्शन के साथ वापस 45,400 ब्रेक करे, देन कंसिडरिंग लो ये 45,300 का एसएल, कंसिडरिंग दिस एसएल आई एम अगेन इंटरेस्टेड फॉर दी कॉल, राइट, फॉर दिस अपवर्ड पंपिंग का जर्नी टिल 45,600, अगर इसके पास मिले तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक दी पुट का सिनेरियो अंटिल एंड अनलेस 45,290 के नीचे, 45,290 के नीचे आर्ली कैंडल रेड क्लोजिंग नहीं देख, राइट, आर्ली कैंडल रेड कैसे, ऐसी रेड या फिर ऐसी रेड बन जाए, अगेन नॉट दिस टाइप ऑफ रेड, राइट, ऐसी रेड बन जाए, अगेन द रेड्स दैट आई हैव मार्क्ड, राइट, और जो रेड कैंडल्स वी हैव कंसीडर्ड फॉर निफ्टी आल्सो, ऐसी रेड अगर इसके पास बन जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल टिल दिस 45,130 का पॉइंट, राइट, कंसीडरिंग दिस एज एन करेक्शन पॉइंट यहां तक के लिए, दैट इज अगर अर्ली रेड बने, नहीं तो यहाँ पे मोस्टली आई एम इंटरेस्टेड फॉर दी कॉल सिनेरियो जो 300 350 के पास आए और फिर भी 45,400 के ऊपर सस्टेन कर पाए, राइट, दैट इज ओवरऑल सिनेरियो अगर फ्लैट या गैप डाउन खुल के आ जाए. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी सिनेरियोस फॉर निफ्टी आल्सो फॉर एंड फॉर बैंक निफ्टी आल्सो फॉर टुमारो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.